Okay, so we have got three categories now. Then, if you just focus it, Claire, then we have got values, then time period, Claire. And after that, I told you that you will have an increase, you may have decrease. These are the trend, or there can be stability. So this is what like we call how. And then, I told you that increase or decrease, that can be of three different types. For example, that like this increase, this is also increase, but it's slow increase, steady. But look at this increase, clear. This increase is a bit rapid increase, clear. So Yeah. both increases, they have like different meaning. Or if there is increase like this, again, this is an increase, but this is quite slow, steady, clear. This is gradual increase and this is rapid increase. So there's even difference between its intensity. And then I told you, Claire, there are a few things that you need to keep in your mind. Number one, approximation words. Can you see like this is 80? Now, if this is 80, now this is just above 80. So we cannot say 80, Claire, or this is just below 100. And this is just below 40. Can you see? That's not 40. That's just below 40. So we can apply formula, as I told you, we can study two formulas now. The last, Claire, two formulas. Then after that, we will study rest of the class, inshallah, we will take tomorrow. Number one, we may start with what, and afterward you can use how. And this how, There is a question. yes, please. सर the secret the three type دي بس دا مونږ comparatively مطلب دا غیر به مونږ ګورو چې دا اوس مونږ کم consider کو او کنه Okay, بس later on, specific later on. सब We don't talk about, we don't write now, okay? हम अभी ये नहीं पढ़ रहे कि कैसे लिखना है। मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर देने, उन तीन स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने पर लिखना है। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है? आपने सर زما अभी مطلب دا دی सिर्फ और چې सिर्फ हम्म increase gradually دی slowly دی هغه تصور وکړه. dramatically اخو ته ولته ګوري کنه، اخو ته دې ته ګوره کنه، د پیزا چې دی دا انکریز شوی دی، خو سلوري انکریز شوی دی کنه. سر زما دا خبره کوم چې مونږ او دا خو به تا ته ګراف کې comparatively ښکاری کنه، دا خو تا ته ګراف کې ښکاری کنه، دا ګراف کې تا ته ښکاری ښه. then after that we will use what, preposition. Verb with adjective. Yeah. Sorry, word plus with adverb. A word with adverb plus, that's preposition, plus approximation word. After approximation word you may write value. After value we write unit, and after unit we write when, time. अब मुझे बताइए यहाँ पे, सपोज यही एग्जांपल अगर हम ले ले, सो वी कैन से, वी मे टॉक अबाउट देयर कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, राइट? कुछ भी हो सकता है इसमें। मैं ये मेरे पास है सपोज हैमबर्गर्स। हाँ, अब मैं हैमबर्गर्स के बारे में, द कंजम्पशन, द, अब ये छोड़े कि कैसे लिखना है वो बात की बात है, ठीक है? अभी आप लोगों ने सिर्फ इतना फोकस करना है कि एक स्ट्रक्चर को आप कैसे बना सकते हैं। द कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ, क्लियर, हैमबर्गर्स। अब मुझे बताए इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है? द ग्रीन वन Increase हुआ है इंक्रीज्ड, क्लियर। तो मैं कहता हूँ इंक्रीज। सर। तो अब पास्ट में है, तो पास्ट में मैं इंक्रीज लिखूंगा कि इंक्रीज, टाइमलाइन पास्ट में है ना? increased. इंक्रीज्ड, Yes, sir. एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब मुझे ये बताए कि जो इंक्रीज आया है वो स्लो इंक्रीज है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है? Rapid increase है। Rapidly, sir. रैपिड, एक्सीलेंट। सो आई कैन से Rapidly। रैपिडली है, ठीक है? सो मैं कैन से शार्पली, शार्प, Sir, can you say dramatically? yes, dramatically. Yes, yes, yes. Any. Thank you. Clear? I will give you the adjectives. I will give you all the adjectives. Don't you worry. तो अब यहाँ पे देखिए increased आया, ये how हुआ कि नहीं मेरे पास? This is how. Yes, Yes, sir. sir. And this is my subject, right? What? ठीक है? What? अब Yes. इसके बाद हमने क्या लिख, preposition लिखेंगे। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनल वैल्यू लिखना चाहते हैं तो टू लिखूंगा। अगर डिफरेंस बिटवीन टू Okay. वैल्यू लिखना चाहते हो तो फिर क्या लिख सकता By. हूँ? बाय, By. ठीक है? By. लेकिन By. फिर या टू, अब यहाँ पे देखिए जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया तो कितने तक आया? फॉर एग्जाम्पल बहुत तेजी से जो आया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 83. मतलब 83, ऑलमोस्ट, 85. या टू ऑलमोस्ट, क्लियर, सपोज 83, क्लियर, टाइम्स पर ईयर। अब ये टाइम्स पर ईयर क्या है? दैट्स यूनिट। That's और unit, कब हुआ yes, है? sir. कब हुआ है? दैट्स फ्रॉम 19 from 1975 1975 to 1985, 80. राइट? Yes, sir. मतलब ये जुमला Yes, कंप्लीट हुआ sir. कि नहीं? आप मुझे बताइए, कंप्लीट हुआ ना? Yes, Yes, sir. sir. तो इसे मैं कहता हूँ व्हाट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा? जब आप लोग को मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब व्हाट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपको आना चाहिए कि व्हाट स्ट्रक्चर।
क्योंकि मेरी बात सुने, आपको एग्जामिनर तब तक अच्छे स्कोर नहीं बैंड नहीं देगा जब तक आप स्ट्रक्चर्स थोड़ा वेरी नहीं करते। अब इसी चीज को मैं दूसरे स्ट्रक्चर में भी लिख सकता हूँ। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं उसे नेम देता हूं देयर वो स्ट्रक्चर। क्या? वो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नंबर 1 था, दैट इज कॉल्ड व्हाट स्ट्रक्चर। What? अब मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ द सेकंड स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाट आई कॉल देयर वाज स्ट्रक्चर। अब देयर वाज स्ट्रक्चर जो है मतलब सेम होगा, मीनिंग जितने भी स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा तो मीनिंग क्या होगा? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट होंगे। अब क्यों हम डिफरेंट स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे आपके ग्रामर के स्कोर बेहतर होने के चांसेस है। एक तो आप अपनी वोकैबुलरी को रिपीट नहीं करना, क्लियर, डोंट यूज द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, नंबर 1, एंड नंबर 2, रिपीट आप एक स्ट्रक्चर में नहीं लिखेंगे, तो दोनों को आपने वेरी करना है। तो जितना आप वेरी रखेंगे उतने आपके बैंड अच्छे आएंगे। अब मैं यहां से स्टार्ट लूंगा, सपोज देयर वॉज। स्टार्ट कहां से लूंगा? अब पहला वाला मैंने वर्ड से स्टार्ट लिया था, ये वाला मैंने स्टार्ट लेना है देयर वॉज। इसके बाद आपने हाउ लिखना है, लेकिन ये हाउ जो अब होगा ये होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। अब मेरी बात सुने, क्योंकि इसमें वर्ब ऑलरेडी है, और वर्ब कौन सा है? वॉज वर्ब है यहां पे। वर्ब इस जुमले में कौन सा है? वॉज। तो अब दो वर्ब्स तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो वर्ब है। तो अगर वर्ब है ऑलरेडी Yes, है, sir. तो उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल? नाउन इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हमने यहां पे एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हाउ और इस हाउ में फर्क क्या है? क्योंकि ये सब्जेक्ट था तो यहां पे वर्ब होना चाहिए था। अब देयर देयर जो है यहां पे ये सब्जेक्ट है, तो हमारे पास वर्ब कौन सा है? वॉज। अब ये नाउन Painting verb आएगा was. यहाँ पे। एग्जैक्टली अब Yes, sir. इसके बाद इसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट, ठीक है। एनी हाउ उसकी आपको जी sir. जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है प्रिपोजिशन। लेकिन ये प्रिपोजिशन और उस प्रिपोजिशन में फर्क है। उसमें मैंने कहा था कि अगर वर्ब हो, डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस के लिए बाय और फाइनल वैल्यू के लिए टू इस्तेमाल करें, बोला ना True वहां data. पे। Yes, sir. अब यहां पे Yes, जो sir. प्रिपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे आपने वो यूज off करना होगा. है, हाँ, ऑफ, डिफरेंस के लिए ऑफ, और फाइनल Yes, के sir. लिए सेम टू। True. फिर हमने क्या लिखना है? इसके बाद हमने लिखना है अप्रोक्सीमेशन वर्ड, सेम। अप्रोक्सीमेशन वर्ड के बाद आपने लिखना है वैल्यू। वैल्यू के बाद आपने ऐड करना है यूनिट। यूनिट के बाद आपने, क्योंकि हमने वर्ड तो नहीं लिखा था वहां पे ना, क्योंकि वी डोंट हैव Yes, वर्ड, sir. तो वो वर्ड हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे जो मतलब हमारे पास सब्जेक्ट है, जो कैटेगरी है। और इसके बाद मैंने लिखना है व्हेन। ये मेरा हुआ फार्मूला मुकम्मल। अब उसी चीज को जो अबाव जुमला है, क्लियर, आई कैन राइट इन दिस वे, देयर वॉज। अब मुझे बताए, जो यहां पे मैंने लिखा था शार्पली, तो शार्पली क्योंकि मैंने हाउ लिखना है तो हाउ के लिए एडजेक्टिव लिखना है मैंने, तो शार्पली का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? शार्प। देयर वॉज अ शार्प। Sharp. अब इंक्रीज का नाउन फॉर्म क्या है? Increase. Increase. इंक्रीज, Increase. क्योंकि इसका नाउन फॉर्म नहीं है, वर्ब हम इज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज लिख सकता हूं यहां पे मैं? कैन आई No. राइट लाइक Yes. दिस? No, no, No. sir. No, नो, No, no. sir. क्योंकि It's a ये verb. बेस, Because we have वेरी गुड, already been used was. एक्सेलेंट, वॉज इज अ वर्ब, वो सेकंड फॉर्म में ऑलरेडी Yes, हो sir. चुका है, एक्सेलेंट। और अब मैंने अगर फाइनल वैल्यू, क्योंकि यहां पे मैंने फाइनल वैल्यू लिखे, तो मैं लिखूंगा टू ऑलमोस्ट 83 स्टूडेंट्स, 83, हमें स्टूडेंट्स के बारे में Hi. कम है, Times. 83 Means that there was टाइम्स a sharp पर increase in the ईयर। consumption of अच्छा, hamburger. शार्प इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 83 टाइम्स पर ईयर, किस चीज में? इन द In the consumption of hamburger. कंजम्पशन ऑफ Hamburgers. hamburgers, ठीक है, इन द कंजम्पशन ऑफ hamburgers, वेरी गुड। और कब? एंड, और वहां पे था फ्रॉम। फ्रॉम, और कल मैंने कहा था ना कि फ्रॉम को हम किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? सपोज बिटवीन, Between. तो Between, yes, बिटवीन, sir, between बिटवीन 1975 and 1975, 1985. टू को हम किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? And And end एंड, में. एंड 1985। तो अब मुझे बताइए, दोनों में कोई फर्क है? no, sir. Yes, Structure. sir. मीनिंग है बिल्कुल वो Structure में क्या है? फर्क है ना, स्ट्रक्चर, meaning the same है. मीनिंग Yes, सेम sir. है, एग्जैक्टली। Yes, Task sir. response same है sir. यस, मीनिंग बिल्कुल सेम है, जस्ट जो फर्क आया वो होगा आपके स्ट्रक्चर Structure. में। और स्ट्रक्चर जितने आपके मजबूत होंगे, मुख्तलिफ होंगे, उतने आपके स्कोर बेहतर आएंगे। अब तीसरा जो मैंने पढ़ाना है अभी, जो लास्ट, उसके बाद आपको गुड बाय कहूंगा इंशाल्लाह, फिर कल मिलेंगे, वो होगा स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर 3। और इस स्ट्रक्चर नंबर 3 को मैं कहता हूं, अपने तरफ से मैंने अपना नाम दिया हुआ है स्पेशल वर्ब, स्पेशल वर्ब। वो. अच्छा, ये किसी किताब की चीज में नहीं होता, ठीक है, मेरे अपने नाम से, ताकि आप लोग के लिए सिर्फ आसानी हो। स्पेशल वर्ब स्ट्रक्चर,
तब स्पेशल वर्ब के लिए थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने कुछ वर्ब्स आपको देने कि इन वर्ब्स का आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए एक्सपीरियंस्ड, मैं आपको वर्ब देना चाहता हूं विटनेस्ड, आपको मैं वर्ब देना चाहता हूं सपोज सॉ, मैं आपको वर्ब देना चाहता हूं शॉर्ट। ठीक है, बस ये स्पेशल वर्ब्स आप अपने मैंने इसे अपना नाम दिया स्पेशल वर्ब्स। अब इन स्पेशल वर्ब्स का जो मकसद है वो क्या है हमारे पास, इस इन स्पेशल वर्ब्स का वी गोइंग टू टॉक अबाउट दी स्पेशल वर्ब्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस देम। अब यहां पे देखिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट लेना है किस चीज से, वर्ड से। आफ्टर वर्ड क्लियर मैंने इस्तेमाल करना है यहां पे स्पेशल वर्ब। मैंने स्टार्ट वर्ड से लिया और देन आई यूज स्पेशल वर्ब। अब मेरी बात सुने, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने कहा था वॉज वर्ब था ना हमारे पास, यस सर। अब यहां पे दोबारा मैंने वर्ब इस्तेमाल किया ना, ये स्पेशल वर्ब। यस सर। तो अब इस यहां पे क्या लिखना है, हाउ। तो क्योंकि हाउ यहां पे जैसे मैंने यहां पे ऑलरेडी वॉज इस्तेमाल किया था, तो मेरे पास हाउ यहां पे क्या बन रहा था, एडजेक्टिव प्लस नाउन बन रहा Adjective था plus ना। noun. Now it एक्सेलेंट, will क्योंकि become वर्ब verb. ऑलरेडी आया तो दोबारा तो मैं वो नहीं लिख सकता, तो हाउ मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन Noun. Noun. प्लस बाकी वही चीज होगा, प्रेपोजिशन होगा। और जब नाउन है तो प्रेपोजिशन इसमें आपको पता है कि या ऑफ होगा या टू होगा। Yes sir. इसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर दिस अप्रोक्सीमेशन वर्ड इस्तेमाल करना है। आफ्टर अप्रोक्सीमेशन वर्ड एग्जैक्टली द सेम। उसके बाद हमने क्या, वैल्यू प्लस यूनिट प्लस, क्योंकि वर्ड तो ऑलरेडी शुरू में आया है तो मैं यहां पे सिर्फ और सिंपली वन लिख दूंगा। ये मेरा हुआ स्ट्रक्चर नंबर 3। आई कैन राइट डाउन फॉर एग्जांपल द कंजम्पशन ऑफ hamburgers एक्सपीरियंस्ड पास्ट में है तो मैं एक्सपीरियंस लिख दूंगा, एक्सपीरियंस्ड अशार इंक्रीज। अब मुझे बताइए, देखिए यहां पे मैंने एक्सपीरियंस लगा दिया ना, तो मैंने लिख दिया Yes, शार्प sir. इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 83 टाइम्स पर ईयर। एंड कब किया हुआ था ये, फॉर एग्जाम्पल 1970. एंड ओके, फ्रॉम 1975 to 1985। अब 1985. मुझे 85. बताइए, अब तीनों स्ट्रक्चर को आप देखे वो हंसते रहिए, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो जो की फीचर्स मैंने दिए थे आप लोग को ये आने चाहिए, क्योंकि कल मैंने इंशाल्लाह टुमारो हमने ओवरव्यू पैराग्राफ पढ़ना है। तो ओवरव्यू में हमने पर ये स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना जो मैंने अभी आपको दिए, इसके अलावा मैंने कुछ और स्ट्रक्चर्स भी देने हैं, मैंने तकरीबन 7-8 स्ट्रक्चर्स देने हैं, लेकिन ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स है, ये कल तक आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू गिव यू मोर स्ट्रक्चर्स। और इसके साथ कल हम ओवरव्यू भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ओवरव्यू भी पढ़ ले, और फिर मेन बॉडी पैराग्राफ्स तक आ जाएंगे। इसमें तो कुछ इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल चीजें आप सर लोगों ने ये सीखना है। ये जो स्पेशल वर्ब आपने दिए तो ये जो आपने दी है बस यही यूज करेंगे या और भी बस हो बस सकते हैं? बस एक बार अगर आपने एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया उसमें एक्सपीरियंस लिख दिया ना, दूसरे बार पर एक्सपीरियंस की जगह विटनेस लिखते हैं, या फिर अगर तीसरी बार लिखने हैं सॉ लिखते हैं, फिर लिखने हैं शोर लिखते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर जो आपने 4 दिए बस यही 4 ही बस इस्तेमाल यही चार करने हैं या यही और चार भी है? यही चार यही चार, इसके अलावा नहीं। ओके। Sir, इससे we सर हम will. Sir, जी we will ओवरव्यू लिख just. वन बाय वन, यस प्लीज। Sir, we will just use by with verb plus adjective, not with the adjective plus noun. Would we? बाय Yeah. वी That you डोंट, have used just. That you have used just in the first one structure. yeah, What so plus how? by is used only with the verb. The difference between two Okay. values only with the verb, not with the noun. Okay. नाउन के साथ बाई की जगह हम क्या लगाने, ऑफ। इन दोनों में ऑफ Hmm. मैंने क्यों लगाए, क्योंकि यहां पे क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, सो दैट्स व्हाई आई यूज ऑफ। लेकिन And टू तो thereby फाने with. मेरे दोनों के लिए आ सकता है। हम Okay, कल sir. और भी एग्जांपल लेंगे तो यू पीपल विल बी वेरी क्लियर इंशाल्लाह। Thank you. एनी क्वेश्चंस? सर जी सर जी, प्लीज ये आज वाला ब्रेक से पहले वाला भी अगर अपलोड कर दें कि मिस मैं हो गया तो मुझे मैं दोनों इंशाल्लाह यस्टरडे एंड टुडेस ये दोनों लेक्चर मैंने अभी अपलोड करने हैं। And जज़ाकल्लाह। sir, this is यस the introductive part. Means that. तुम्हारा यस्टरडे वी स्टडी इंट्रोडक्शन, अभी मैंने वो भी अपलोड करना है कल वाला, मैं आज अपलोड कर Okay. दूंगा। Okay, sir. सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इंशाल्लाह सर टुमारो। आज का यूज जी जी, अल्लाह
See you inshallah tomorrow. Huh? Allah Hafiz. Take care of ये yourself. जो ऑफ फाइल किसी ने कुछ पूछना है? सर मैंने कुछ पूछना है कि जी जो जी। ऑफ फाइल यूज करना है वो नाउन के बाद होगा। क्या नाउन के बाद होगा? ऑफ यूज पूछ रहे हाँ हैं। हाँ, नाउन नाउन के बाद ऑफ होगा, नाउन के ऑफ बाद होगा। स्ट्रक्चर में देखे ना, मैंने नाउन के बाद लगाया ना। ठीक है। So Sir, we'll the see you screen inshallah is not. tomorrow. इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, and we'll see you tomorrow. Sir, the structure got a dismiss, sir. It's not saying to take picture. मैं अभी अपलोड कर दूंगा तो वहां से फिर ले ले, खैर है। Okay, sir, inshallah.